Hello everyone, my name is Gauri Ghate and welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorials. This is our series on Indian Express Explained. In this series, we go through Indian Express Explained articles from throughout the week and the articles that are important for your CLAT 2027 preparation. We bring those articles to you in the form of a lecture. But before we begin with today's lecture, this is a gentle reminder, not just a gentle reminder, मतलब अच्छे से याद रखो कि less than 24 hours remaining for this मैराथन. आपका जितना भी द हिंदू का बैकलॉग है, प्रियंका मैम का मैराथन सेशन है फॉर द हिंदू, 8 महीनों का बैकलॉग आपके 8 आवर्स में हो जाएगा. रिमेंबर 26th of August from 4 p.m. to 12 a.m. on this Law Prep tutorials official YouTube channel. So I'm expecting to see all of you there, and trust me, this is going to be super duper beneficial for your CLAT 2027 preparation as well as if you're preparing for CLAT 2028. And everyone, मतलब this is a non-negotiable part of your preparation. ये marathon attend करनी ही है. These 8 months of backlog for the Hindu हो जाएगा 8 hours में cover. Okay, so I expect to see all of you there. Be there. It's going to be a live session. You can interact with Priyanka ma'am and she'll be there to guide you all. So let's begin. आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड आर्टिकल बात कर रहा है शुगर शॉर्टेज और एथनॉल के बारे में. Why ethanol diversion is not to blame for soaring sugar prices. I know कि सबसे easy straight line हम ड्रॉ कर सकते हैं कि शुगर जो है महंगी हो गई और एथेनॉल के बीच में सबसे स्ट्रेट रिलेशनशिप हम ड्रॉ कर सकते हैं. बट दिस आर्टिकल ओवर हियर tells us about how the problem is a little more deeper than just shifting or diverting the sugarcane into ethanol production. Let's see. Problem ये है कि excess rainfall in Maharashtra, Karnataka and Gujarat in September and October of last year, which is 2025. We'll see that how that excess rainfall in these states has caused this sugar shortage, has hit sugarcane growth, hurting sugar production, pushing stocks to a 9-year low. Result क्या है? Sugar prices rose by 20 rupees per kg in just a month. Let's look at it. Sharp, we've seen that there's a sharp rise in sugar prices. Key numbers क्या हैं? Retail price 45 rupees per kg हुआ करता था on July 21st. However, August in less than in almost a month ये 65 rupees पे jump कर गया है. We are seeing a 20 rupee jump in just a month. इसे कहते हैं acute shortage, एकदम से shortage हो जाना. एक्स फैक्ट्री प्राइसेस अगर 20 अगस्त के देखें तो यूपी में अराउंड 60 kg तक है, महाराष्ट्र में 62, कर्नाटका में 63, 64. 1st August ex factory prices were 15 to 17 kg lower across the states. Closing stocks देखा गया है कि within this 1 month बहुत ज्यादा, जैसे कि हम ये वाला फिगर देख चुके हैं, एक महीने में 20 रुपए पर केजी का फर्क आया है. Now the question is, why did the sugar production go down? Why did the sugar production fall? And resultantly, why did the sugar prices go up? अब अगर यहाँ हम देखें तो we'll look at multiple reasons. The first reason, as we've seen in the first slide, is excess rainfall in the states of महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात. हम ये देखते हैं कि इंडिया में रेनफॉल कहाँ से आता है. इंडिया में रेनफॉल आता है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड से, और ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं ये 2 सीजन्स में चलती हैं. हमें याद रखना है कि इंडिया में 4 सीजन्स होते हैं. इंडिया में ऑटम स्प्रिंग हम नहीं देखते हैं. इंडिया में हम क्या सीजन्स देखते हैं? समर सीजन देखते हैं, विंटर सीजन देखते हैं, एडवांसिंग ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून्स देखते हैं और रिट्रीवल ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून्स देखते हैं. तो व्हाट हैपेंड इन द ईयर 2025 was that this retrieval of southwest monsoon took way longer than expected, जिसका मतलब है कि बहुत लंबे समय तक महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और गुजरात में क्या देखी गई? हेवी रेनफॉल देखी गई. Because of this heavy rainfall,
वाटर लॉगिंग हो गई शुगर केन फील्ड्स में, वाटर लॉगिंग। डिलेड मॉनसून विड्रॉल हमने देखा, फील्ड्स में ज्यादा बारिश हुई तो फील्ड में वाटर लॉगिंग हो गई। अब क्या हुआ, साथ में एक तो वाटर लॉगिंग हो गई, दूसरा मॉनसून अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ, साउथ वेस्ट मॉनसून अगर विड्रॉ नहीं हुआ तो हमने देखा है कि बादल रहेंगे, सनशाइन नहीं मिलेगी शुगर केन को, तो लैक ऑफ सनशाइन हुआ। इसकी वजह से पुअर एरेशन एंड क्रॉप स्ट्रेस। क्रॉप स्ट्रेस तब कहा जाता है जब जो आपका क्रॉप होता है, जो प्लांट होता है, उसे प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिलती हैं अपने ग्रोथ के लिए, और जब ऐसा होता है दिस इज व्हाट रिजल्ट्स इन क्रॉप स्ट्रेस। रिजल्ट क्या है, लोअर केन यील्ड्स और रिड्यूस्ड शुगर रिकवरी। अब ये दो चीजें हमें समझनी है। केन यील्ड मतलब उस ही शुगर केन में से ग्रोथ उतनी ही हुई है, हाउएवर शुगर कंटेंट कम हो गया है। क्या कम हो गया है, शुगर कंटेंट कम हो गया है। शुगर कंटेंट क्यों कम हुआ है, क्योंकि ये लैक ऑफ सनशाइन और वाटर लॉग्ड फील्ड्स की वजह से एरेशन नहीं मिला, शुगर क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, तो उसने अपना जो शुगर कंटेंट है अपने सर्वाइवल के लिए यूज किया, जिसे हम क्रॉप स्ट्रेस बोलेंगे। इसीलिए एट द एंड ऑफ द डे शुगर केन में शुगर कंटेंट कम हो गया, और नेचुरली जब इस शुगर केन को आप शुगर मिल्स में लेके जाएंगे, यहाँ से शुगर एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसका शुगर रिकवरी बहुत कम होगा। तो हमने देखा पहला रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ एक्सेस रेनफॉल एंड वाटर लॉगिंग, शुगर केन का जो क्रॉप निकल के आया हार्वेस्ट के बाद उसमें शुगर कंटेंट कम था, तो शुगर रिकवरी भी कम हुई। सेकेंड, पेस्ट एंड डिसीज अटैक। यूपी में हमने देखा, यूपी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जा रहा है शुगर केन का। वन ऑफ द रेड रॉट फंगल डिसीज, ये देखिए ऐसे जैसे हो जाता है ना, इससे शुगर कंटेंट बहुत कम हो जाता है। ये जो फंगस है रेड, ये जो रेड फंगस होता है, ये शुगर केन पे जम जाता है और उसका शुगर कंटेंट अब्सॉर्ब करता है अपने सर्वाइवल के लिए, इसलिए शुगर कंटेंट कम हो जाएगा। प्लस टॉप शूट बोरर इंसेक्ट, CO0238 शुगर केन की जो वैरायटी है, हाईली ससेप्टेबल है ये रेड रॉट फंगल डिसीज एंड टॉप शूट बोरर इंसेक्ट पे। इसका मतलब इन पे बहुत जल्दी इस CO0238 वैरायटी पे बहुत इजीली इंपैक्ट आता है इन दो डिसीजेस और वेक्टर्स का। यील्ड और रिकवरी लॉसेस सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट आउटपुट। अब नेचुरली अगर फंगस हो जाएगा, रेड फंगस जम जाएगा या रेड फंगस रॉट हो जाएगा शुगर केन में, तो वो कम शुगर यील्ड देगा। तो फर्स्ट रीजन तो ये हो गया, एक्सेस रेनफॉल हुआ महाराष्ट्र में, एक्सेस रेनफॉल गुजरात और आपके कर्नाटका में, एंड सेकंड यूपी में हमने देखा कि बहुत ज्यादा डिसीजेस शुगर केन के क्रॉप में देखी गई। अगर प्रोडक्शन एस्टिमेट्स देखें, प्रॉब्लम जहां आई है, एस्टिमेटेड था कि कहां गया, हाँ एस्टिमेटेड था कि 343 लाख टन का शुगर निकलेगा। हाउएवर इन रियलिटी सिर्फ 309 लाख टन शुगर निकला, बेसिकली 34.5 लाख टन लेस। ठीक है, तो ये एस्टिमेट से 34.5 लाख टन कम शुगर निकला। और नेट आउटपुट आफ्टर एथेनॉल डाइवर्जन, मतलब इतना, ये जो 309 लाख टन का एक्चुअल शुगर केन निकला है, उसके बाद 309 में से एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किया गया एक क्वांटिटी, कितना आफ्टर, तो एथेनॉल के लिए शुगर केन निकालने के बाद 279 लाख टन बचा था, लेकिन इससे पहले हमको लगा था कि 309 लाख टन बचेगा। ओके, एथेनॉल डाइवर्जन में 30 लाख टन गया। अब हम देखें, अगर ओवरऑल प्रोडक्शन हुआ था, हम अगर 344 लाख टन माने, एथेनॉल गया 30 लाख टन, तो ये तो 10% से भी, सॉरी, हाँ 10% से भी कम परसेंटेज जो है, 10% से भी कम शुगर केन टोटल डाइवर्ट हुआ है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, लेस देन 10%। तो इस लेस देन 10% की वजह से इतना प्राइस वेरिएशन तो नहीं आना चाहिए, इसीलिए दिस इज व्हाट द मिथ विच इज कि एथेनॉल की वजह से, एथेनॉल प्रोडक्शन की वजह से शुगर केन का या शुगर का प्राइस बढ़ा है। प्राइस मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से बढ़ा है,
और इनमें एथेनॉल की तरफ डाइवर्जन शुगर केन का सिर्फ 10%, इनफैक्ट 10% से भी कम है। सेकेंड चीज, 68% ऑफ टोटल एथेनॉल जो इंडिया में बना है केम फ्रॉम ग्रेन, मेज या राइस, नॉट शुगर केन। मतलब इंडिया में यस, इंडिया में सिर्फ 32% जो है एथेनॉल शुगर केन से बनता है। और तो और देखा जाए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स देखें तो हम देख रहे हैं कि 10% से भी कम शुगर केन डाइवर्ट किया है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। साथ में अर्ली मॉनसून डेफिशिएंसी, पिछले साल मॉनसून बहुत ज्यादा लंबा चला था, इस साल मॉनसून कम आया है महाराष्ट्र कर्नाटका में। इसकी वजह से फियर क्या है कि अगले साल भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो अगर हम सिर्फ नंबर्स देखें, सिर्फ और सिर्फ हम नंबर्स देखें तो 343 लाख टन शुगर केन प्रोडक्शन हुआ है अभी तक, जिसमें से अराउंड 30 लाख टन डाइवर्ट हुआ है एथेनॉल के लिए। और ये वाला जो 30 लाख टन से एथेनॉल बना है, ये इंडिया का सिर्फ 32% है, क्योंकि इंडिया का 68% एथेनॉल ग्रेन से बनता है। ये वाला जो अमाउंट है, ये जो है 10% से भी कम है। इसका मतलब अगर ये 10% हटा भी देते तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन प्राइस जंप्स में। ओके, अब मैनेजमेंट स्टेप्स क्या लिए गए हैं अभी? गवर्नमेंट हैज बैंड द शुगर एक्सपोर्ट्स टिल September 30th as per the Hindu article we've seen. Government has allowed duty free import of up to 10 lakh tons of raw sugar till October 31st. ये रहा। Imposed stocking limit of 400 tons per dealer. कोई भी डीलर 400 टन से ज्यादा जो है शुगर नहीं रख सकता होल्ड करके। स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स ऑन शुगर, डायरेक्टेड मिल्स टू रिपोर्ट बल्क कंज्यूमर्स बाइंग 500 टन से ज्यादा एन्युअली, जो कंज्यूमर शुगर हर साल लेते हैं एन्युअली, उनको रिपोर्ट किया जाए, और ये रिपोर्ट करने का काम शुगर मिल्स करेंगी। ठीक है, रिपोर्ट करने का काम शुगर मिल्स करेंगी। So these are the present steps that have been taken. When we move ahead, another step, yes, we've seen government acts to curb sugar price rise, ensure adequate availability during the festive season. हम सब जानते हैं कि फेस्टिव सीजन में शुगर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। What more can be done? We can direct mills to stop ethanol production from sugarcane juice and bee molasses in 2026-27. तो ये जो 10% है, इसको भी वापस शुगर में डाइवर्ट कर देंगे। इसके बाद फोर्स मिल्स एंड ट्रेडर्स टू रिलीज स्टॉक्स टू ऑगमेंट डोमेस्टिक सप्लाई। फोर्स करो कि तुम्हारे पास जो स्टॉक्स है उसे रिलीज करो, एंड नेक्स्ट मॉनिटर करो कि कोई होल्ड तो नहीं कर रहा है फेस्टिवल सीजन के पहले। यहीं पे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि इसका मतलब ओवरऑल एथेनॉल प्रोडक्शन बंद नहीं करना है, सिर्फ शुगर से जो एथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है वो बंद करना है। तो रिलेटेड टू दिस आई वाज थिंकिंग दैट बायोफ्यूल्स की जो जेनरेशंस हैं, डिफरेंट जेनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल एक बार हम देख लें। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बहुत हाई कार्बन कंटेंट वाला होता है, एडिबल आइटम्स शुगर, कॉर्न और स्टार्च से बनता है। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल ग्रीन हाउस गैस कंटेंट इसमें कम होता है फर्स्ट जनरेशन से, ये लेफ्ट ओवर फूड क्रॉप्स जैसे राइस हस्क, वुड चिप्स से बनता है। थर्ड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन न्यूट्रल होता है, मतलब वो जिस मटेरियल से बना है वो उतना कार्बन एब्जॉर्ब कर चुका है जितना कार्बन रिलीज होगा इसके यूज पे। जैसे ये एल्गी से बनता है। फोर्थ जनरेशन जो है कार्बन नेगेटिव होता है, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से बनता है। ऐसे क्रॉप्स या ऐसे सोर्सेज जो जलने पे जितना या फ्यूल बनने पे जितना कार्बन रिलीज करेंगे उससे ज्यादा एब्जॉर्ब किए हुए हैं, तो इसे कार्बन नेगेटिव कहते हैं। ओके, सो दिस वाज द आर्टिकल अबाउट why the prices of sugar is going up and how it is not completely because of ethanol. So I hope you understood this concept. It was a tiny video, but I thought that this is an important concept for you to understand. Ethanol क्या होता है, sugar prices बढ़ क्यों रहे हैं,
and we've understood sugar prices क्यों बढ़ रहे हैं. So if you all have any doubts, yes, the comment section is open for you, and I'll see you in the next lecture.